Hello dear students, as you all know, yesterday in the last session we have started this new chapter, the Mughal Empire. Children, you might have heard about the Mughal Empire. Now I am just giving you a brief recapitulation of what we have done in the last class. Okay children, so here I am starting with this chapter. We have yesterday discussed about the Mughals who had their father and mother, because they were such great rulers now. So we need to understand that how the Mughals have established themselves. Where did they get the inspiration from? From the mother's side also they had great descendants, मतलब the predecessors, उनके जो पूर्वज थे, उनके जो दादा परदादा थे, सिंपल लैंग्वेज में इफ आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, वो बहुत ग्रेट लोग थे. तो 16th सेंचुरी से इन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली एंड पूरे सब कॉन्टिनेंट पे इनका राज था. दे वर हैविंग देयर ओन वे ऑफ रूलिंग. बहुत सारे चेंजेस किए इन्होंने इंडिया में. दे हैव ब्रॉट लॉट ऑफ चेंजेस. क्या चेंजेस थे अभी हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. Although I have discussed it, I am just revising it, my dear children, what we have done yesterday. From mother's side, they were descendants of Genghis Khan, and they ruled over the parts of China and Central Asia. And from father's side, what happened? They were the successors of Timur, who died in 1404. So from both the sides, Timur was the person who came and who ruled India. But Genghis Khan, he wanted to come to India, he wanted to rule India, but he was not very much successful in that. So the Mughals did not like to be called as Mughal or Mongol, because Genghis Khan's memory बहुत अच्छी नहीं थी. Genghis Khan was also a great ruler, but people never took his name with a lot of respect because he was a very atrocious. उन्होंने बहुत लोगों को मारा गेंगीज खान ने. मतलब अपने किंगडम पे कब्जा करने के लिए, दूसरी किंगडम्स पे अपना पावर दिखाने के लिए, they have killed many people. Got it? तो that is what they have done, and that is how the things started changing with the Mughals. And इनका लिंक they also had link with Uzbeks. Uzbeks were also, ये देखो सारी डायनास्टीज थी. जैसे मुगल्स थे, आपने क्लास 6th में पढ़ा होगा. You might have studied in class 6th about the great Maurya Empire, Gupta Empire, all these people, all these dynasties that we have read. In the previous chapter, we have read about the slave dynasty, about the Tughlaqs. ये भी एक लाइनेज था, ये भी एक रूलर्स थे. उसी तरह से the Mughals also had their ruling dynasties, had their ruling categories in different parts. Their Mongol competitors were there. दूसरी तरफ क्या था? Mughals were proud of the Timur dynasty. Okay children, ये कल मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, लेकिन I think it was not very clear, so today again you can see this picture. This was handmade by a great some of the great painters. Imagine कितना सुंदर, कितना खूबसूरत पेंटिंग बनाया है. ऐसा लग रहा है दादा परदादा सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं, है ना. On the right hand side, on the left hand side, ये देखो इनके सारे डायनास्टीज हैं. एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर.
मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग मीन्स बहुत बड़ा पेंटिंग नहीं, थोड़ा छोटा सा ही पेंटिंग है। तिमूर एंड हिज डिसेंडेंट्स, मतलब तिमूर और उसके आने वाली जो नस्ल थी, उसके आने वाली जो लोग थे, सबसे बीच में दे हैव शोन तिमूर, दिस इज तिमूर। उसके बाद हिज सन मिरान शाह, मिरान शाह इज हियर, बाबर्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा के परदादा, गॉट इट। देन लेफ्ट ऑफ तिमूर इज मोहम्मद मिर्जा, बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर, and Umar Sheikh, Babur's father. Mughal emperors are there, बाबर, अकबर, शाहजहां। इनके बारे में तो अभी हम चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ेंगे, वी विल बी रीडिंग अबाउट देम इन डिटेल। ठीक है, सो दिस पेंटिंग इज ब्यूटिफुल पेंटिंग, गॉट इट। पिक्चर बना के इन्होंने अपना पूरे ख़ानदान के बारे में लोगों को बताया, पीपल कुड अंडरस्टैंड द कंप्लीट डायनास्टी इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। अब वी विल बी सीइंग द मिलिट्री कैंपेन्स। फर्स्ट मुगल एम्परर, बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर। बेटे इसमें वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज द डेट्स। ऐसे क्या है कि डेट्स ऐसे जनरली द CBSE डजंट आस्क डेट्स, बट कितनी बार ऐसा होता है ना दैट फ्रॉम द जीके चीज़ें जो है वो याद रखनी चाहिए आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे आप कहीं कंपटीशन जाते हैं, क्विज के लिए जाते हैं, तो दीज डेट्स आर गुड एंड इम्पॉर्टेंट, इसलिए आपको याद रखना है। मिलिट्री कैंपेन, सबसे पहले बाबर ने क्या किया, he captured the throne of Fergana. Fergana is in the Middle East, ईरान, इराक और इसी के पास में दिस स्मॉल कंट्रीज देयर Fergana, एंड इनका जहाँ पे ये रहते थे बाबर, his ancestral throne means his great father and great grandfather and great grandfather's great grandfather, all of them जहाँ वो रहते थे वहाँ से उनको निकाल दिया गया था due to the invasion of another Mongol group. Mongols में भी there were two groups, ठीक है, एक जो था उसमें they were the Uzbeks. We need to understand this thing, the Uzbeks were there. तो बहुत दिन तक he tried to find out a place, इन्होंने he kept on wandering, after years of wandering he seized Kabul. इन्होंने क्या किया, काबुल पे कब्जा किया, एंड 1526 में ही डिफीटेड, 1504 में ही कैप्चर्ड काबुल। काबुल कहाँ है, काबुल इज इन अफगानिस्तान, गॉट इट। एंड 1526 में ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। उस समय सुल्तान कौन था, लोधी डायनास्टी, द लास्ट डायनास्टी, द रूलर्स अमंग्स द सुल्तान्स, द सुल्तान डायनास्टी जितने भी थे, all the sultans who were there, उसमें इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। सबसे पहले इनका ये जो बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध सुना होगा आपने, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन, एवरीबडी नोज अबाउट दिस बैटल ऑफ पानीपत, एंड ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे टेबल 1। यहाँ पे देखो सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स आर देयर चिल्ड्रन, कैन यू सी दिस पिक्चर। पैसे होती थी ये उस समय ओरिजिनल पिक्चर्स है, वी हैव फाउंड दीज पिक्चर्स इन सम ऑफ द ओल्ड बुक्स, some of the old historians books that have been written, some of the writings that were there by the ancient people during the Mughal time,
horses, elephants, all these were there in the participating in the battle. अभी ये भी देखो, उस समय के पेंटर्स ने बनाया. Painters in those days have made it. Some of the major campaigns of Mughals we can see. ये देखो, फिगर 4 में हम क्या देख रहे हैं? Cannons were an important addition in the 16th century. तोप जो है ये था, cannons were there. It was an addition in 16th century warfare. And Babur, what did he do? Babur used them effectively in the first battle of Panipat. जीत क्यों गए? We have to understand. Lodi dynasty was ruling India. Lodi dynasty was effectively established in Delhi. लेकिन वो जीत नहीं पाए बाबर से. क्यों नहीं जीत पाए बाबर से? Because he had used many new technologies in this war, due to which Lodi dynasty was defeated. ये देखो, this is cannon. मुगल आर्मी, ये फिगर 3 है, फिगर 3 ये है, फिगर 4 वो है. Also had a fight with the Ahoms in Assam, and Sikh also, Mewar, Marwar. And Humayun's relationship with Iran, I'm sorry, it was different from Akbar. Humayun के बारे में भी हम पढ़ेंगे. He was the second ruler of the Mughal dynasty, and Humayun, whatever he has done, Humayun, the way he has captured, he ruled India, he made his campaigns in India, and he also have done his campaigns in Iran also. Okay. He has lot of hostilities in the Deccan. Hostilities means मतलब जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में इनकी बहुत सारी दुश्मनी थी. तो ये इस दुश्मनी के वजह से क्या हुआ कि इनके he has to face lot of problems. अब ये है टेबल 1. वी वर टॉकिंग अबाउट दिस टेबल चिल्ड्रन. आप लोगों के बुक में ये टेबल होगा, आप इसको एक बारी देख लीजिएगा. द कंप्लीट डेट वाइज डिटेल्स आर मेंशन्ड हियर. ये फोटोग्राफ भी बनी हुई है. ये फोटोग्राफ उसी समय के फोटोग्राफर्स ने बनाई है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस वाज अ काइंड ऑफ अ पोर्ट्रेट. इट वाज नॉट अ क्लिक फोटोग्राफ. उस समय क्लिक फोटोग्राफ तो डेफिनेटली नहीं हो सकता. साइंस वाज नॉट दैट डेवलप्ड. बट देन एक पोर्ट्रेट काइंड ऑफ था. 1526 में ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी, एंड देन 1527 में ही डिफीटेड राणा सांगा, एंड 1528 में ही डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी. मीन्स ही इंडिया पे इतना आसानी से इनको कब्जा नहीं मिला. बाबर डिड नॉट गेट टू रूल इन इंडिया सो ईजली. ही हैज़ टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. So he established control over Agra and Delhi before his death. इसके बाद विल फाइंड हुमायूं. ये देखो हुमायूं, ये दिल्ली में एक बहुत अच्छा से स्ट्रक्चर है, हुमायूंस टूम. दिस इज कॉल्ड एज हुमायूंस टूम. आप नेट पे जाके देखना, यू विल फाइंड इट. आई विल ऑल्सो ट्राई टू क्लिक अ फोटोग्राफ एंड शो इट टू यू. So in Humayun, what did he do? 1530 से 1540 तक ही ruled India. 10 साल.
लेकिन बीच में व्हाट हैपेंड, देयर वॉज अ ग्रेट रूलर कॉल्ड एज शेर शाह सूरी। आपने शेर शाह सूरी का नाम सुना है? यस चिल्ड्रन, आपने यहाँ पे वी विल फाइंड दिल्ली से लेके कैलकाटा तक एक रोड कंस्ट्रक्ट हुआ था उस टाइम में, एंड दैट रोड वॉज कॉल्ड एज ग्रैंड ट्रंक रोड। ओके, सो the roads that were made by Sher Shah Suri, Sher Shah Suri, he ruled India for 15 years. 15 years के बाद हुमायूं again came back 1555 to 1556. Children, यहाँ पे एक चीज़ बस ऐसे दिमाग में आ रही थी, I was just wanted to share it with you. हार नहीं मानना है कभी भी. I'm just telling it, it just came to my mind, so I was sharing it with you. Humayun was a ruler who ruled from 1530 to 1540. बीच में he was defeated by Sher Shah Suri, लेकिन he again came back and he has ruled only for 1 year. उसके बाद he died. तो his brothers were each given a province. He divided his inheritance according to the will of his father. इनके brothers थे मिर्ज़ा कामरान and अफगान competitor शेर खान जो है, शेर खान, his name was शेर खान, but later on he was called as शेर शाह सूरी. He defeated हुमायूं at चौसा 1539 में and at कन्नौज in 1540. फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान. फिर हुमायूं को यहाँ से भाग के कहाँ जाना पड़ा? ही वेंट टू ईरान. ईरान में हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफ़ाविद रूलर. हुमायूं वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ के जो सफ़ाविद रूलर थे उनसे, सफ़ाविद वॉज ऑल्सो ए डायनेस्टी, जैसे यहाँ पे मुगल्स थे वैसे ही वहाँ पे सफ़ाविद्स थे. इन्होंने क्या किया, वापस सफ़ाविद से हेल्प लेके आके ही रीकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555, लेकिन डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन दिस बिल्डिंग. इसी बिल्डिंग में यहाँ पे क्या हो गया, ही डाइड. दैट्स वाई यहीं पे उनको फिर दफना दिया गया एंड इट वाज कॉल्ड एज हुमायूंस टूम. गॉट इट? Another important thing that is there, children, one of the greatest rulers of the Mughal dynasty, we will be talking about him, and he was Akbar. क्या किया इन्होंने, कैसे किया इन्होंने, हम इसके बारे में अभी देखो बात करेंगे. अकबर, सबसे बात ये कि अकबर रूल्ड द मैक्सिमम 1556 to 1605. How many years? Around 50 years. Got it? He was, and remember when he became king, when Akbar became king ना, कितने साल के थे वो? How many years old he was? He was just 13 years old. And his reign can be divided into 3 periods. इनका जो ruling period था ना, उसको हम 3 parts में divide कर सकते हैं. 1556 to 1570, Akbar was independent of the regent Bayram Khan. 13 year old के बच्चे को क्या आएगा रूलिंग के बारे में, उसको कुछ रूलिंग के बारे में पता ही नहीं था. एंड उसके बाद ही बिकेम फ्री फ्रॉम बैरम खान. कब इनको फ्रीडम मिली? 1556 से 1570 बैरम खान के साथ रूल किया. उसके बाद मिलिट्री कैंपेन्स वेयर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरी एंड अदर अफगान्स, क्योंकि अफगान से इनको हमेशा डर रहता था ना. शेर शाह सूरी हैड ऑलरेडी कैप्चर्ड, तो शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी और उसके जो डिसेंडेंट्स थे, उसके साथ के जो लोग थे, ठीक है, दे तो अगेंस्ट द, दे वर ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, कि कहीं फिर से आके और कुछ उल्टा सीधा ना कर दें. neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana. And what happened? To suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim,
ठीक है, इनके भाई भी जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रूल करने की कोशिश कर रहे थे. ही वॉज ट्राइंग कि एनीबडी हु इज़ रेजिंग हिज वॉइस अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, उसको उसके साथ बुरा व्यवहार ही होना चाहिए. गॉट इट. And 1568 the Sisodia capital of Chittor was seized. And 1569 इन्होंने क्या किया ना, he is a person who captured lot of places in Rajasthan. (1570 to 1585) he went to Gujarat, Bihar, Bengal, Odisha. काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, मतलब आई मीन ही वॉज ट्राइंग टू कैप्चर ऑल दीज प्लेसेस एंड ही वॉज मेकिंग हिमसेल्फ ट्रायम्फेंट. ये विक्टोरियस हो रहे थे हर पार्ट, इंडिया के हर पार्ट में, हर जगह अपना पावर इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे. देन 1585 to 1605 there was expansion of Akbar's empire. Campaign was there in northwest. Kandahar was seized. कंधार अफगानिस्तान में, ठीक है, कंधार पे भी कब्जा हो गया फ्रॉम सफाविड्स. कश्मीर was annexed. Kabul was annexed, and after the death of Mirza Hakim, campaigns in the Deccan started, and the Berar, Khandesh, Ahmednagar, all these places were annexed. इन्होंने इन लोगों ने सारे प्लेसेस पे, अकबर ने सारे प्लेसेस पे कैप्चर कर लिया. लास्ट ईयर्स में क्या हुआ, अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम, द फ्यूचर एम्परर जहांगीर. प्रिंस सलीम के साथ इनकी प्रॉब्लम्स हुई. इनके बेटे थे सलीम. जो आगे चल के ही बिकेम द रूलर नोन एज जहांगीर. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज चिल्ड्रन दैट द सीक्वेंस. द फर्स्ट वन वॉज बाबर. बाबर का बेटा हुमायूं. हुमायूं का बेटा अकबर. ओके. And after Akbar, who became the ruler? Yes, children, you can very well see it. It's Jahangir. Got it? Now let's understand Jahangir's points. Akbar ka military campaign had started. It continued. Jahangir also continued the same thing. Like the ruler of Mewar, Amar Singh, he accepted Mughal service. क्या हो गया ना, Mughals were becoming so powerful. So gradually and slowly, everybody was accepting the power of these Mughal rulers. पहले ही surrender कर देते थे. They did not want any kind of a fight. So less successful campaigns were happening against the Sikh, the Ahoms and Ahmednagar. इसके बाद जहांगीर के जो बेटे थे, ओके, द सन ऑफ जहांगीर was Prince Khurram. His name was Prince Khurram and he was called as the future, the future जो एम्परर शाहजहां बना. He rebelled in the last years of his reign. लास्ट ईयर्स में ना इन्होंने पूरी तरह से रिबेल कर दिया, बहुत ज़्यादा. दे हैव गॉन अगेंस्ट देयर ओन फादर. नूरजहां, जहांगीर्स वाइफ, marginalized him, were unsuccessful. ठीक है.
मार्जिनलाइज मीन्स कि वो जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे थे उनको वहाँ से अलग थलग कर दिया गया, लेकिन ही वॉज सक्सेसफुल शाहजहां। ये द बिगेस्ट थिंग दैट वाज देयर दैट द मुगल्स दे वर एबल टू कॉन्कर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन इंडिया। बस जो जगह बच रही थी दैट वाज द साउथ। एवरी टाइम दे यूज टू गो टू द साउथ, साउथ में जाके कुछ करने की कोशिश करते थे, लेकिन कैप्चर करने की कोशिश करते थे, बट दे वर अनेबल टू। सो शाहजहां in from 1627 to 1658 Mughal campaigns continued in the Deccan under Shahjahan. Noble Khan Jahan Lodi rebelled and was defeated. Anybody who was rebelling against him was defeated. Okay. Campaigns means war. Try to understand. अपने टाइम पे अपने तरीके से वॉर करते थे, जिसके किसके खिलाफ वॉर हुआ? अहमदनगर, बुंदेलास वेर डिफीटेड, ओरछा वॉज सीज्ड, नॉर्थ वेस्ट में बल्ख वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम उज़्बेक्स, इट वॉज अनसक्सेसफुल, एंड कंधार जो है, जो हुमायूं ने कैप्चर किया था, वो जो है क्या धीरे धीरे खो गया। So Ahmednagar was finally annexed and Bijapur forces sued for peace. अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, सारे साउथ इंडिया में आपको ये सारी जगह जो है मिलेगी। These all places are found in South India. Got it? 1657 to 1658 there was conflict over succession amongst Shahjahan's son. उनके जो बेटे थे उनमें आपस में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई। ओके, एंड औरंगजेब was victorious and his three brothers Dara Shikoh were killed. Shahjahan was imprisoned for the rest of his life in Agra. क्या हुआ कि औरंगजेब जो है the last मुगल एम्पायर, he was a bit furious, very strict ruler. इन्होंने अपने भाइयों को भी बर्दाश्त नहीं किया, मतलब he wanted the things in his own manner. नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली Ahoms were defeated. Ahoms means the rulers of Assam. असम के जो रूलर्स थे उनको अहोम्स कहते थे. एंड मुगल इंटरवेंशन इन सक्सेशन, lot of interference was there amongst the Rajputs of Marwar led to their rebellion. क्या होता है, कोई रूलर अपने हिसाब से रूलिंग करने की कोशिश कर रहा है, बट व्हेन ही इज नॉट सक्सेसफुल और बार बार उनको कोई रोकने की कोशिश करता है, देन दे रिबेल. रिबेल मीन्स देन दे गो अगेंस्ट द रूलर. सो कैंपेन्स वेर देयर अगेंस्ट मराठा चीफ शिवाजी. नाम सुनाइए बेटा आपने. शिवाजी वॉज कैप्चर्ड अंडर बाय औरंगजेब एंड बाद में फिर वो निकल के भाग गए. अकबर, प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव्ड प्रिंस, मतलब उनके बेटे का नाम था. वो कितनी बार अपने दादाजी के नाम पे, अपने पिता के नाम पे भी आगे का नाम रख देते हैं ना. डेक्कन में इन्होंने बहुत बार आर्मीज भेजी. डेक्कन मीन साउथ इंडिया. बीजापुर वॉज एनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकोंडा इन 1687. और 1698 से व्हाट हैपेंड, औरंगजेब पर्सनली managed campaigns in the Deccan against the Marathas. Marathas have started the guerrilla warfare. तो इसके खिलाफ इन लोगों को he had to take steps. So his death was followed by a succession conflict amongst his sons. औरंगजेब का नाम है सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर्स मुगल्स में, इनको भी माना जाता है आफ्टर अकबर. लेकिन अकबर के टाइम में
The most remarkable thing that was there was that a lot of peace was there. बहुत ही पीसफुल ढंग से लोग रहते थे. Got it, children? तो इतना आप अभी पढ़ लीजिए. Just revise it once. And then we have to do this map work. We will be doing this map work in the next class, and then we will be starting with this topic, Mughal traditions of succession. Okay children, thank you children, and all the best to you, and God bless you all.